پچھلے 10 ماہ سے دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف ان کو جیلوں میں ڈالا، گرفتار کیا، ہسپتالوں میں گھسیٹا اور سزائے موت کی چکیوں میں رکھا۔ معیشت تباہ ہوئی، عوام بے روزگار ہوئی، عوام غریب ہوئی، لوگوں کے منہ سے روٹی چھینی گئی، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، گیس، بجلی، دوائی مہنگی ہوئی۔ وہی شخص آج جب اقتدار کے چھن جانے پر پاگل ہو چکا ہے، وہ آج سیاسی دہشت گرد نہیں بلکہ وہ دہشت گرد ہے۔ اور جو پاکستان کی عوام پچھلے 10 ماہ سے دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف ایک حکومت رسپانسبلٹی کے ساتھ عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے، جو چاہتی تو وہ ریاستی طاقت بھی موجود تھی، وہ تمام ریاستی ہتھیار بھی موجود تھے، وہ ٹولز بھی موجود تھے جس سے عمران خان صاحب کو آتے ہی گرفتار کر لیا جاتا۔ لیکن پورے پروسیس کو قانون نے اپنا راستہ لیا اور عمران خان صاحب کی چوریاں، ڈکیتیاں، توشہ خانہ کی چوری ہو، خزانے کی چوری ہو، ہیرے جواہرات کا بٹورنا ہو، فورن فنڈنگ ہو، ٹیریان کا کیس ہو، اس سب پہ قانون نے اپنا راستہ لے کر عدالتوں کے اندر انڈر ٹرائل یہ کیسز ہیں جہاں عمران خان صاحب پیش نہیں ہو رہے، اور صرف اس لیے کہ جواب نہیں ہے تو پورے ملک کو جلا رہا ہے یہ شخص، پورے ملک کو یہ شخص جلا رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب کیا کہتے تھے؟ عمران صاحب یہ کہتے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے اس لیے میں عدالت میں پیش نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں بیمار ہوں، بزرگ ہوں، تو میں عدالت میں پیش نہیں ہوں گا، مجھے یہ مار دیں گے میں اس لیے عدالت میں پیش نہیں ہوں گا، مجھے یہ گرفتار کر لیں گے میں اس لیے عدالت میں پیش نہیں ہوں گا۔ اور پولیس عدالتی وارنٹ کے اوپر، اریسٹ وارنٹس کے اوپر عمل درآمد کرا رہی تھی، اور عوام نے یہ دیکھا کہ جو جو چیز عمران خان صاحب کہتے تھے وہ سب غلط تھی، اسی طرح غلط تھی کہ جس طرح عمران خان صاحب نے عوام سے وعدے کیے تھے وہ جھوٹ تھے، عمران خان صاحب نے کرپشن کے خلاف نعرہ لگایا تھا وہ جھوٹ تھا، عمران خان صاحب نے 90 دن میں معیشت کو ٹھیک کرنے کی بجائے 70 سال کی جو معیشت تھی اس کا جنازہ نکال دیا، سب جھوٹ تھا۔ اسی طرح یہ ثابت ہو گیا کل کہ عمران خان صاحب جو جو کچھ کہتے تھے، اگر تمہاری جان کو خطرہ تھا اور اگر تمہیں قتل کر دینے کا پلان تھا تو کل کیا ہوا؟ اگر تم بیمار تھے، اگر تم بزرگ تھے، تم عدالت نہیں جا سکتے تھے تو کل کیا ہوا؟ اور اگر تمہیں گرفتار کر کے قتل کر دینے کا پلان تھا تو پھر کل کیا ہوا؟ بات یہ ہے کہ یہ ایک جھوٹا دہشت گرد چوہا ہے، اور جو ہم کہتے تھے، ہم کیا کہتے تھے؟ ہم یہ کہتے تھے یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا، یہ ڈیلائنگ ٹیکٹس استعمال کر رہا ہے کیونکہ یہ چور بھی ہے، یہ فورن ایجنٹ بھی ہے، یہ جھوٹا بھی ہے اور اس نے چوری کی ہے، اور یہ ٹیریان کا والد بھی ہے۔ اور ہم کہتے تھے کہ جب اس کو عدالت بلائے گی یہ سرکاری املاک بھی توڑے گا، یہ ریاست کے اوپر حملہ آور بھی ہوگا، یہ پولیس والوں کے سر بھی توڑے گا، یہ جتھے بھی لے کر آئے گا، یہ گنڈے بھی لے کر آئے گا، یہ اسلحہ بھی لے کر آئے گا۔ اور کل کیا ہوا؟ عوام نے وہ سب کچھ دیکھا جو حکومت کہہ رہی تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہی تھی کہ یہ ایک ڈرپوک فورن ایجنٹ چوہا ہے جو عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا، اور عدالت کو بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ ریاستی رٹ کے اوپر حملہ آور ہوگا، یہ عدالت کو دھمکی سے، اسلحے سے، غنڈہ گردی سے، دہشت گردی سے، بدماشی سے ڈرا رہا ہے۔ اور کل کیا ہوا؟ کل بالکل وہی ہوا جو ہم کہہ رہے تھے۔ ایک چوہا عدالت گیا اور لاہور سے لے کر، زمان پاک سے لے کر اسلام آباد تک، ٹرائل کورٹ تک اسلحے سے لیس، جتھوں سے لیس، گنڈوں سے لیس، ڈنڈوں سے لیس، ہتھیاروں سے لیس، پتھروں سے لیس ایک شخص ریاست پہ حملہ کرتے 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 اسلام آباد پہنچا اور وہ پیش نہیں ہوا، کیونکہ وہ چور ہے، کیونکہ وہ فورن ایجنٹ ہے، کیونکہ وہ ٹیرین کا والد ہے، کیونکہ اس نے گھڑیاں چرائی ہیں، کیونکہ اس نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے۔ اس لیے
वो पेश नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको इससे पहले कि मैं आपको मजीद एविडेंस दूं, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूं कि कल अदालती अहकामात के ऊपर अमल दरामद करने की पुलिस ने 2 दिन से ज़मान पाक में और कल जो कोशिश की, एक दहशतगर्द ने जो प्लान किया, जो कंसीव किया, उसको एग्जीक्यूट किया। और वो आप वीडियो देखें, फिर मैं आपसे इससे आगे मौजू पे बात करती हूं। ये पुलिस की गाड़ियों के ऊपर, लोगों की मोटर बाइक्स के ऊपर, गरीबों की मोटर बाइक्स के ऊपर, पुलिस की गाड़ियों के ऊपर ये हमला कल, इससे पहले जो ज़मान पाक में हुआ है वो आप लोग देख चुके हैं। ये माशरे की हिफाजती जमानत पुलिस है जिसके ऊपर एक दहशतगर्द हमला आवर है। और आपने एक देखा होगा कि पुलिस की गाड़ी जो है वो किस तरह तोड़ के उस पर हमला करके उसको वो डूब रही है। ये वही हिफाजती जमानत जो माशरे की पुलिस है, वो इस दहशतगर्द की वजह से, इस रियासती हमला आवर की वजह से, जो अपने दहशतगर्द गिरोह के जरिए, गुंडों के जरिए, असले के जरिए, गुलेलों के जरिए, पत्थरों के जरिए आज उस जमानती माशरे की जमानत जो हिफाजत की जमानत होती है उस पर हमला आवर है। ये सियासी तंजीम है, ये सियासी जमात है। ये जो मनाजर आपने देखे हैं, और ये मनाजर क्यों है? पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस अदालत के अहकामात, उनके अरेस्ट वारंट्स के ऊपर अहकामात पर अमल करवा रही थी। अब बात सिर्फ इतनी है कि वो कोर्ट्स जहां चिड़ी पर नहीं मारती थी, वो कोर्ट्स जहां माय लॉर्ड कहा जाता था, वो कोर्ट्स जिसमें अगर 1 मिनट की ताखीर होती थी तो बेल कैंसिल हो जाती थी, वो कोर्ट्स जहां 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ सिसिलियन माफिया गॉड फादर और डॉन के आवाजें आती थी, जो वो वजीर आजम जो कानून के आगे पेश हो रहा था ये जानते हुए कि ये झूठे केसेस हैं। और आज क्या हो रहा है कोर्ट्स में? आज कोर्ट्स में पत्थर बरसाए जा रहे हैं, डंडे, असला, गुंडे, दहशतगर्द, पेट्रोल बम्स वो बरसाए जा रहे हैं। और उसके बरक्स क्या हो रहा है कि गाड़ी में रजिस्ट्रार को भेजकर अटेंडेंस लगाने के लिए अदालत दरखास्त कर रही है। तो मुझे ये बताएं कि कौन सी पुलिस? अदालत की मुहाफिज भी पुलिस होती है, इंसाफ की मुहाफिज अदालत होती है। तो जो पुलिस अदालत की हिफाजत करती है उसकी रिट को अगर अदालतें कॉम्प्रोमाइज करेंगी तो फिर इस मुल्क में सिर्फ खाना जंगी होगी। इस मुल्क की हर गली का अपना कानून होगा, इस मुल्क के हर गली से जत्थे निकलेंगे, हर गली से जत्थे गुंडे दहशतगर्द निकलकर अदालतों के ऊपर हमला आवर होंगे, पुलिस के ऊपर हमला आवर होंगे, रियासत के ऊपर हमला आवर होंगे। ये चीज यहां रुकेगी नहीं। अगर आप लोगों का यह ख्याल है कि एक लाडले को यह तहफ्फुज देकर, एक लाडले को यह रियायत देकर इस मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी तो यह आपकी गलत फहमी है। अगर यह रवायत चल पड़ी जो चल पड़ी है कल, एक शख्स को आप
23 अगस्त से बुला रहे हैं। वो कहता है मैं नहीं आऊंगा, मुझे बुलाओगे तो मैं कहूंगा ओ ज़ेबा जज, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अगर पुलिस को कहा जाए कि अदालत कहे कि उस दहशतगर्द को पकड़कर उस मुजरिम को, उस मुल्जिम को सामने पेश किया जाए, तो वो गुंडे लेकर, गुलेले लेकर, पत्थर लेकर, असला लेकर, दहशतगर्द लेकर अदालतों के ऊपर इस तरह हमला आवर हो और दरखास्त की जाए कि गाड़ी में अटेंडेंस लगा ली जाए। ये मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। तो फिर वो लोग जो कल अदालत को ये कहेंगे कि हम पेश नहीं होंगे, हर गली से जत्थे निकलेंगे, गुंडे निकलेंगे जो कानून, आईन और इंसाफ के ऊपर इसी तरह हमला आवर होंगे। और उसके बाद इंसाफ की, कानून की और अदलिया की पुरइसरार खामोशी मुल्क के लिए खतरा बनती जा रही है। एक शख्स जो सुबह उठता है और अदारों पे हमला आवर होता है, पुलिस पर हमला आवर होता है, इमरान खान, मुल्क की इस तबाही का, मुल्क की इस में आग लगने का, मुल्क को तकसीम करने का, जीबी की फोर्स को पंजाब से लड़ाने का, पंजाब की फोर्स को वफाक से लड़ाने का, ये वो शख्स है जो मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने की बात करता था, आज मुल्क को टुकड़े टुकड़े कर रहा है। आज पाकिस्तान में आईन को, कानून को, रियासत की रिट को टुकड़े टुकड़े कर रहा है और अदालतों से रिलीफ का बंडल पैकेज लेकर जा रहा है। मुझे यह बताएं कि किस मुजरिम को, किस दहशतगर्द को, किस गुंडे को, किस मुल्जिम को आज तक यह रियायत मिली है कि वो लाहौर से चले दहशतगर्द लेकर, गुंडे लेकर, गुलेले, पत्थर लेकर और पहुंचे अदालत। ना अदालत की कोई खिड़की बचे, ना अदालत का कोई दरवाजा बचे, ना अदालत का कोई कैमरा बचे, ना अदालत का कोई सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बचे। रास्ते में लोगों के मोटर बाइक जलाए, पुलिस वालों की वैन्स के ऊपर हमला करे, पुलिस वालों के सर तोड़े, रियासत की रिट के सर तोड़े और उसको यह रियायत दी जाए कि तुम गाड़ी में बैठो, तुम्हारी अटेंडेंस लगवाई जाएगी और यह कहा जाए कि इमरान खान को आने नहीं दिया जा रहा। पुलिस तो उसको लेने गई थी, आपने उसको रिलीफ देकर पुलिस की उस रिट का कत्ल किया। कोई अदालत आज सुओ मोटो लेने वाली नहीं है। जो चिड़िया के पर मारने पे सुओ मोटो लिए जाते थे, आज इस दहशतगर्द को कोई पकड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दहशतगर्द ऐसे होते हैं जैसे उस दिन कहा था कि वो गारों से दहशतगर्दी करते हैं। हमने ये कहा था इमरान खान पेश नहीं होगा क्योंकि वो उसके पास जवाब नहीं है तलाशी देने के लिए। ये तमाम केसेस अदालतों के अंदर मौजूद हैं। पूरी दुनिया में आज क्या जागसाई हो रही है कि पाकिस्तान में पुलिस वालों के एक दहशतगर्द सर फाड़ रहा है, उसके घर से असला बरामद हो रहा है, उसके घर से दहशतगर्द तंजीमों के लोग बरामद हो रहे हैं। वो खुले आम ट्वीट करके अदालतों को ये मैसेज देता है, इंसाफ और कानून और आइन को ये मैसेज देता है कि मैं अपनी जूती के नीचे समझता हूं सबको। और आज भी दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत अपने केसेस में, जो केसेस झूठे अभी भी बच गए हैं, वहां हर रोज की बुनियाद पर पेश होती है। हर रोज की बुनियाद पर वो कानून के सामने उन झूठे केसेस के ऊपर पेश होती है जिसकी गवाहियां आ चुकी हैं कि ये झूठे थे। लेकिन इस शख्स को कोई पूछने वाला नहीं है। रियासत हुकूमत का नाम नहीं है। रियासत पार्लिमान, अदलिया और हुकूमत का नाम है। और इन तीनों पिलर्स ऑफ स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुल्क की, रियासत की रिट के मुहाफिज है। और अगर इस तरह होगा तो पाकिस्तान जंगल होगा, जंगल का कानून होगा, हर गली कूचे का अपना कानून होगा। फिर खुद इंसाफ और कानून मुल्क को दहशतगर्दों के हवाले कर रहा होगा। अब आप जरा चलाएं दूसरी तरफ एक वीडियो और, जो मोर्चा है ना, दहशतगर्दों का मोर्चा जिसको जमान पाक कहते हैं, वहां से कल अदालती हुक्मनामे के ऊपर, अदालती सर्च वारंट्स के ऊपर क्या चीजें निकली, जरा वो देखें।
یہ کسی سیاسی جماعت کے قائد یا کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کا گھر ہے؟ یہ دہشت گرد کے مورچے کی تصویر ہے. کیا نکلا ہے کل عمران خان کے گھر سے؟ پیٹرول بم، کلاشنکوف، اسلحہ، بنٹے، غلیلیں، خود دہشت گرد، اندر سے پولیس پر فائرنگ، پولیس والوں کے سر توڑنے کے تمام ہتھیار. یہ ملک کی تاریخ میں تمام میرے خیال میں سیاسی قائدین کے گھروں کے سرچ وارنٹس نکلے ہیں. کورٹ کے آرڈر پر یہ سرچ وارنٹ نکلا ہے جو پنجاب کی حکومت نے کل آپ کو پریس کانفرنس میں بھی بتایا ہے. اور یہ زمان پاک کے اندر سے یہ تمام چیزیں جو بھی آپ نے دیکھی ہیں، جو پیٹرول کی بوتلیں برآمد ہو رہی ہیں، جو پیٹرول بم بنانے کے لیے، جو خود ان کے ایم پیز یاسمین راشد صاحبہ خود کہہ رہی ہیں کہ پیٹرول خریدو، ڈنڈے خریدو، گلیلیں خریدو، پتھر لاؤ، توڑو، وہاں اندر جمائیں. کیوں جمائیں؟ اور دکھ ہے کہ سرچ وارنٹ میرے گھر کے اوپر چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال ہوا ہے. جب ادھر شہباز شریف کی بیٹی، ادھر ہی ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کی بیٹی سرچ وارنٹ کے بغیر اس کے گھر کے اندر نیب کو بھیجا، تم نے بھیجا، وزیر اعظم ہاؤس کے حکم کے اوپر گیا. جب مریم نواز رائیونڈ کے اندر تھی تو باہر کنٹینر لا کر، بلڈوزرز لا کر دیواریں توڑی گئیں. تب چار دیواری کون سی؟ اندر سے دہشت گرد برآمد ہوئے تھے. جب شہباز شریف کی بیٹی کے گھر کے اندر نیب کی فورس گئی تھی تو اندر سے پیٹرول بم برآمد ہوئے تھے، کلاشنکوف برآمد ہوئی تھی، گلیلیں برآمد ہوئی تھی، دہشت گرد برآمد ہوئے تھے. اور کراچی میں جب ہم سندھ میں گئے تو کراچی کے اندر جس وقت تم نے مریم نواز کے بیڈ روم کے اندر پولیس کو بھیجا اور اہلکاروں کو بھیجا سرچ وارنٹ کے بغیر، بیڈ روم کے اندر، اس کے بیڈ روم میں نیب میں کیمرے لگوائے. تمہیں چار دیواری کے تقدس کا پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن جو اپنی بیٹی کو قبول نہ کرے اس کو چار دیواری کا کیا پتا؟ جو چار دیواری کے اندر اسلحہ رکھے، کلاشنکوف رکھے، پیٹرول بم رکھے، غلیلیں رکھے، پتھر رکھے، اس کو چار دیواری کے تقدس کا کیا پتا؟ وہ تو دہشت گرد ہے. پہلے ہم اس کو سیاسی دہشت گرد کہتے تھے، یہ دہشت گرد ہے. اس کی ذہنیت دہشت گرد ہے. جو یہاں سے نکلتا ہے گھر کے اندر یہ تمام ہتھیار رکھ کر، پتھروں سے لیس، گنڈوں سے لیس، آئین کو رونتا ہوا، قانون کو توڑتا ہوا، عدالت کو گالی دیتا ہوا اور دھمکاتا ہوا، صرف اس لیے کہ کل فرد جرم عائد نہ ہو، ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال ہو. تو اس نے پیش ہونا ہی نہیں تھا. یہ ہم ہر روز کہتے تھے کہ یہ پیش نہیں ہوگا. پیش تو وہ ہوتے ہیں، پیش تو نواز شریف ہوا تھا اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے روزانہ کی بنیاد پر، پیش شہباز شریف ہوا تھا، پیش حمزہ شہباز ہوا تھا، خواجہ آصف ہوا تھا، سعد رفیق ہوا تھا، سلمان رفیق ہوا تھا، مفتاح اسماعیل ہوا تھا، احسن اقبال ہوا تھا. پیش وہ ہوتے ہیں جن کے پاس جواب ہوتے ہیں، جو اپنی بیٹیوں کی عزت رکھنا بھی سمجھتے ہیں، ان کی حفاظت کرنا بھی سمجھتے ہیں. پیش وہ ہوتے ہیں جو بیٹیاں اپنے والد کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہیں. تم جیسا دہشت گرد، تم جیسا چور، تم جیسا غنڈا بدماش پیش نہیں ہوتا. وہ کرتا ہے جو کل پرسوں ترسوں پاکستان کی عوام نے مناظر دیکھیں. آج تم یہ بتاؤ کہ تم یہ سوال کرتے ہو کہ تمہارے گھر کو سرچ کیوں کیا گیا ہے؟ تم یہ جواب دو کہ کورٹ آرڈر پہ جب تمہارے گھر کو سرچ کیا گیا ہے تو تمہارے گھر کے اندر سے کیا نکلا ہے؟ تم اس کا جواب دو. تم کورٹ پیش ہونے کی بات کرتے ہو کہ تمہیں کورٹ کیوں بلایا جا رہا ہے؟ میری جان کو خطرہ ہے. یہ وہی شخص ہے جو کہتا تھا کہ میں اس لیے کورٹ پیش نہیں ہو رہا کہ مجھے قتل کر دیا جائے. تو پھر کل کا کیا ہوا؟ صرف کل ایک چیز ہوئی جو ہم کہتے تھے، یہ عدالت کے آگے پیش نہیں ہوگا. یہ جھوٹا ہے، یہ فراڈ ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس نے سب چوریاں ڈاکے کیے. یہ ٹیرین کا والد ہے، اس نے اپنی بیٹی کو ڈکلیئر نہیں کیا، اس لیے یہ پیش نہیں ہوتا. اور مریم نواز تمہارے اعصاب پر طاری ہے.
और जब दहशतगर्द को ये पता चल जाए ना कि उसका मुकाबला आ गया है, तो वो तुम्हारी तरह ही विरोध करता है अपने दुश्मन का, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और ये मैं दोबारा एक बात कहना चाहती हूं कि आज अदालतों के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए और इंसाफ के लिए एक सवालिया निशान है कि क्या वो मुल्क के अंदर इसी किस्म का जंगल का कानून चाहते हैं कि एक मुल्क रोनता हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने और सेशन कोर्ट के सामने एक शख्स पुलिस और रियासत के ऊपर हमला आवर है और आप उसको गाड़ी में भेजकर वो सहूलत देते हैं जो मुल्क की तारीख में आज तक, कानूनी तारीख में, आईनी तारीख में, आज तक अदालती तारीख में वो सहूलत किसी गुंडे को, किसी मुजरिम को, किसी कातिल को, किसी दहशतगर्द को नहीं दी। अच्छा मैडम, बताइएगा मनीष साहब, आप लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि वहां से दहशतगर्द के लोग थे, असला बरामद हुआ, पीके के सारे लोग कह रहे हैं कि पुलिस वहां से असला बरामद करने गई थी, लेकिन ठंडे मशरूबात जो है वो पीते हुए नजर आ रहे हैं और उसी की तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पे लगाई हुई। क्या कहें? पीटीआई के लिए पेट्रोल बम जो पुलिस वालों पे फेंके जाएं वो ठंडे मशरूबात ही होते हैं, क्योंकि उनके मशरूबात और मंशियात कोई और होती हैं। उनके लिए ये मजाक है, उनके लिए ये तमाशा है कि पुलिस वालों के पेट में गोली मार दो, लॉन्ग मार्च बंद हो जाएगा। और वो आज 6 बच्चे यतीम बैठे हुए हैं। उनके लिए ये तमाशा है कि अंदर से सोशल मीडिया पे ट्रोल्स और झूठी तस्वीरें लगा दो, लेकिन आज मेरे मुल्क के साथ जो हो रहा है, आज मुल्क के अंदर जो जंगल का कानून है उसका जिम्मेदार इमरान खान है। उल्फत बात करो, मैं आ रही हूं, सबको दूंगी। आपका नाम उल्फत है? देखिए, आपने खुद ही अपना जवाब दे दिया कि पाकिस्तान की तारीख में अगर सबसे तेज, सबसे ज़्यादा किसी को रिलीफ मिला है तो परसों लाहौर हाई कोर्ट में देखा गया 8 मिनट में 8 जमानतें। तो मैंने आज खुद जो प्रेस टॉक की है, मैंने तो ये बात बड़ी वाज़िया तौर पर बताई है कि वो शख्स जो कहता था कि मैं अदालत पेश नहीं होऊंगा, वो नहीं हुआ। और हम ये कहते थे कि वो पेश नहीं होगा क्योंकि उसने ये चोरियां की हैं। तो आज अदालत के ऊपर ये सवालिया निशान है, आज मुल्क के कानून पे ये सवालिया निशान है कि माशरे की जो ज़मानत होती है, जो हिफाजत की ज़मानत होती है, पुलिस उसके सर फाड़ कर, गुंडागर्दी कर कर लेकिन मैं, जैसे मैंने पहले कहा, कैटेगोरिकली ये बताना चाहती हूँ, आज ये डिफ्रेंशिएट किया है मैंने आपको वीडियोज़ के ज़रिए भी और एविडेंस के ज़रिए भी कि ये सियासी लीडर नहीं है। एक तो ये हम कहते थे ये चूहा है, ये गीदड़ है, ये अदालत पेश नहीं होगा, ये कानून से डरता है, ये अपने जराइम से डरता है, ये अपनी की हुई चोरियों से डरता है, ये उस बच्ची से डरता है जिसको इसने डिक्लेयर नहीं किया, और वही हुआ। लेकिन ये अब ये अदालतों पे, कानून पे, तराजू के उस पलड़े के ऊपर सवालिया निशान है जो बराबर नहीं हो रहा। जी, लेकिन कल जिस तरीके से हमने देखा कि सियासी लीडर, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के घर पर जिस तरीके से क्रेनों से उसके दरवाजे तोड़े गए, अगर खुदा न करे माजी में ऐसा होता है तो वो भी आईन पाकिस्तान के तहत होगा। और दूसरा ये बताएगा कि आईजी पंजाब आपको मिसगाइड कर रहे हैं, गलत बयानियां दे रहे हैं। पेट्रोल बम प्लास्टिक की बोतलों में बन नहीं सकता, वो शीशे की बोतलों में होते हैं, और अब तक जो बोतलें दिखाई जा रही है वो प्लास्टिक की। पहली बात जो है कि पेट्रोल बम किस में बनता है ये इमरान खान जानता है। बोतलें प्लास्टिक में आती हैं या शीशों में पेट्रोल आता है, ये भी इमरान खान जानता है। हमने ना कभी ज़िंदगी में पेट्रोल बम बनाए, ना हम ऐसी कोई इंटेंशन रखते हैं। ये जो दहशतगर्दी की लेबॉर्ट्री है, ये ज़मान पार्क में ही रह जाए तो बेहतर है। और दूसरी बात कि ज़मान पार्क के ऊपर जो सर्च वारंट्स हैं वो कोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर अहकामात के अमल दरामद किया गया है,
اور یہ कोर्ट ने हुक्म दिया था कि जो 2 दिन पेट्रोल बम्स चलते रहे हैं, जो दहशतगर्द फायरिंग करते रहे हैं, जो क्लाशनकोव्स की आवाज़ें आती रही हैं, जो पुलिस पर फायरिंग की आवाज़ें आती रही हैं, जो बंटे पुलिस वालों के सर फाड़ते रहे हैं, जो पत्थर पुलिस वालों के सर फाड़ते रहे हैं, इसलिए वो सियासी जमात के लीडर का गर्द नहीं बल्कि एक दहशतगर्द का मोर्चा था जिस पे कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और तलाशी हुई थी, और वही निकला जिसका खतरा भी था और जिसका यकीन भी था। दरख्वास्त जमा कराएं उस फोरम पे जहां 8 मिनट में 8 जमानतें आ जाती हैं। ये दरख्वास्त की जरूरत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की एक दहशतगर्द के खिलाफ सुओ मोटो की जरूरत है। देखिए, इन्होंने वो काम किया है जो किसी ने नहीं किया मुल्क की तारीख में। ये दहशतगर्द को की सहूलतकारी की जा रही है। रिट चैलेंज किया जा रहा है अदालतों की। ये अदालत की रिट है जिसको चैलेंज कर रहा है गुंडा और दहशतगर्द, जिसको करने की रियासत अदालत होती है, रियासत हुकूमत होती है, रियासत पार्लियामान होती है। इन तीनों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रियासत की रिट की हिफाजत की जाए। तो आज अदालत के लिए ये सवालिया निशान है, सबके लिए। मैं इधर ही हूं। आपने माजी में देखा है कि अदालतों पे किसने हमला किया, गाड़ियों में पत्थर लेके नैब के दफ्तर में कौन आया, इससे रिलेटेड सवाल है। अगर मुल्क की मईशत नहीं चल रही, सियासत नहीं चल रही, अदलिया आपके बकौल नहीं चल रही, तो क्या किस चीज का इंतजार है? अब ताकत का तवाज़ुन बैलेंस करने के लिए या तो आप मियां नवाज शरीफ साहब को यहाँ लाएं पाकिस्तान में, या आप इलेक्शन करवा दें ताकि अवाम से नया मैंडेट। मैं नवाज शरीफ साहब को वापस लाने का मशवरा आपका जरूर इस पे अमल दरामद कराऊंगी। जी, बहुत लंबा था, रेपिटेशन भी थी। आपने वो लेमनेड पिया था उस बोतल के अंदर से? पिया था? ओ भाई, मेरे भाई, या मेरी बात सुने। अगर आप इसमें तफरीक कर लेना, क्योंकि आपके पास वो कलम है, आपके पास वो मनसब है जिसने अकाउंटेबिलिटी करनी है, 4th पिलर ऑफ स्टेट हैं आप। अगर आप उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनेंगे, अगर आप उस झूठ का हिस्सा बनेंगे, और अगर आप उसको फैसिलिटेट और तकवीयत देंगे, तो फिर आज मुल्क का यही हाल होगा जो हो रहा है। जी, राना सनाउल्ला साहब कोर्ट में गए हुए, और क्या वारंट जारी करने के बाद राना सनाउल्ला के घर से बम की बोतलें निकली? क्या पुलिस के सर फाड़े गए? क्या कोर्ट के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया? क्या पुलिस वालों के गुलेलों से सर फाड़े गए? क्लैशनकोफ राना सनाउल्ला ने निकालकर पुलिस वालों पर हमला किया। राना सनाउल्ला साहब कोर्ट गए हुए हैं उसके अगेंस्ट बेल के लिए। भाई मेरे, बात यह है कि ये वन साइडेड है या बायस्ड है, उसका फैसला आपने नहीं करना। आप सहाफ़ी हैं, आपने रिपोर्ट करना है कि मैंने ये प्रेस टॉक किया। दूसरी बात, मैं आ रही हूँ उस पे भाई मेरे, मैं आ रही हूँ। इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं। मैंने आपके सारे सवाल सुन लिए, ठीक है? मैंने सब सुने आपके सवाल, उसका जवाब भी सुने। जरा थोड़ा सा हौसला पैदा करें, वरना हाँ, बड़ी मेहरबानी। बात यह है कि मैंने आपको वो दिखाया जो आपकी आंखों ने, अगर कल आप बतौर रिपोर्टर ज़मान पाक में मौजूद थे तो आपने देखा।
या तो आप कह दें कि वहाँ जश्न बहारा का मेला था, या आप कह दें कि वहाँ कल मैराथन रेस थी, या वहाँ कल ग्राउंड जमान पार्क का PSL के लिए इस्तेमाल हो रहा था। आपने वो तमाम चीज़ें खुद अपनी आंखों पे आपके चैनल्स ने दिखाई। आपने पुलिस की गाड़ियों को जलते हुए, पुलिस वालों के सर फटते हुए और क्लैशनकोफ और डंडे और पेट्रोल की बोतलें दिखाई। तो फिर आपकी रिपोर्टिंग भी बायस थी। आपको वहाँ जश्न बहारा के ढोल धमाके दिखाने चाहिए थे जो वहाँ हो रहा होगा, जो सारे 40 से ज़ायद टीवी चैनल्स के ऊपर चला। तो फिर आप कहते हैं कि वो झूठी रिपोर्ट्स थी। इस बात का इजहार वो कर लेते हैं एडमिशन कि जी ठीक है, मैंने जो दिखाई वो सारा पाकिस्तान में कल जमान पार्क में नहीं हुआ, कल वहाँ एक जश्न बहारा हो रहा था जो मैंने नहीं दिखाया। तो इसका फैसला तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके चैनल ने भी कल ये रिपोर्टिंग दिखाई। दूसरी बात, आज तोशा खाना की जो मैंने घड़ियों की बात की है, वो मरियम औरंगजेब सवाल नहीं पूछ रही, वो सवाल इस्लामाबाद की सेशन हाई कोर्ट पूछ रही है इमरान खान से, जिसका जवाब उसके पास नहीं है, इसलिए वो दहशतगर्द है और दहशतगर्दी कर रहा है। हाँ जी, आप मैं आती हूँ आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका जी। आपका एक संजीदा रोल आप हुकूमत है, आप उनको कोई बातचीत के अंदर को ऐसे एंगेज करने का कोई हुकूमत का प्रोग्राम है? दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं होती, सियासतदानों से सियासतदान बात करते हैं। जिनके हाथ में क्लैशनकोफ, डंडे, गुलेलें होती हैं, वो बात करने के काबिल नहीं होते। मेरे ख्याल में बार एसोसिएशन तब आएंगी जब अदालतों को अपनी हिफाजत और अपनी वकार और अपने तकद्दुस का ख्याल होगा। जी, इमरान खान की दहशत गर्दी के एमा पर उसको ये सहूलतकारी दी जा रही है। और कल मैंने सवाल किया था कि क्या इंसाफ क्लैशनकोफ और दहशत गर्दी से खौफजदा है, तो आज मुझे ये यकीन आ गया कल के बाद कि वाकई पाकिस्तान में इंसाफ गुलेलों, दहशत गर्दों, डंडों और क्लैशनकोफ से खौफजदा है। कुछ समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। एक मिनट खामोश जी। कोर्ट ऑर्डर था ना, कहती कोर्ट तो ना जाती पुलिस। उनको जेलों में डाला, गिरफ्तार किया, अस्पतालों में घसीटा और सजाए मौत की चक्कियों में रखा। मईशत तबाह हुई, अवाम बेरोजगार हुई, अवाम गरीब हुई, लोगों के मुंह से रोटी छीनी गई, आटा महंगा, चीनी महंगी, गैस, बिजली, दवाई महंगी हुई। वही शख्स आज जब इक़्तिदार के छिन जाने पर पागल हो चुका है, वो आज सियासी दहशतगर्द नहीं बल्कि वो दहशतगर्द है। और जो पाकिस्तान की आवाम पिछले 10 माह से देख रही है कि एक तरफ एक हुकूमत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है, जो चाहती तो वो रियासती ताकत भी मौजूद थी, वो तमाम रियासती हथियार भी मौजूद थे, वो टूल्स भी मौजूद थे जिससे इमरान खान साहब को आते ही गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन पूरे प्रोसेस को कानून ने अपना रास्ता लिया और इमरान खान साहब की चोरियां, डकैतियां, तोशाखाना की चोरी हो, खजाने की चोरी हो, हीरे जवाहरात का बटोरना हो, फॉरेन फंडिंग हो, टेरियन का केस हो, उस सब पे कानून ने अपना रास्ता लेकर अदालतों के अंदर अंडर ट्रायल ये केसेस हैं जहां इमरान खान साहब पेश नहीं हो रहे। और सिर्फ इसलिए कि जवाब नहीं है तो पूरे मुल्क को जला रहा है ये शख्स, पूरे मुल्क को ये शख्स जला रहा है।
और इमरान खान साहब क्या कहते थे? इमरान साहब ये कहते थे कि मेरी जान को खतरा है इसलिए मैं अदालत में पेश नहीं होता। इमरान खान साहब ये कहते थे कि मैं बीमार हूं, बुजुर्ग हूं, तो मैं अदालत में पेश नहीं होऊंगा। मुझे ये मार देंगे, मैं इसलिए अदालत में पेश नहीं होऊंगा। मुझे ये गिरफ्तार कर लेंगे, मैं इसलिए अदालत में पेश नहीं होऊंगा। और पुलिस अदालती वारंट के ऊपर, अरेस्ट वारंट्स के ऊपर अमल दरामद करा रही थी। और अवाम ने ये देखा कि जो जो चीज इमरान खान साहब कहते थे वो सब गलत थी। उसी तरह गलत थी कि जिस तरह इमरान खान साहब ने अवाम से वादे किए थे वो झूठ थे। इमरान खान साहब ने करप्शन के खिलाफ नारा लगाया था वो झूठ था। इमरान खान साहब ने 90 दिन में मईशत को ठीक करने की बजाय 70 साल की जो मईशत थी उसका जनाजा निकाल दिया। सब झूठ था। इसी तरह ये साबित हो गया कल कि इमरान खान साहब जो जो कुछ कहते थे, अगर तुम्हारी जान को खतरा था और अगर तुम्हें कत्ल कर देने का प्लान था तो कल क्या हुआ? अगर तुम बीमार थे, अगर तुम बुजुर्ग थे, तुम अदालत नहीं जा सकते थे तो कल क्या हुआ? और अगर तुम्हें गिरफ्तार करके कत्ल कर देने का प्लान था तो फिर कल क्या हुआ? बात यह है कि ये एक झूठा दहशतगर्द चूहा है। और जो हम कहते थे, हम क्या कहते थे? हम ये कहते थे ये झूठ बोलता है, ये अदालत के सामने पेश नहीं होना चाहता, ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि ये चोर भी है, ये फॉरेन एजेंट भी है, ये झूठा भी है और इसने चोरी की है और ये टेहरियान का वालिद भी है। और हम कहते थे कि जब इसको अदालत बुलाएगी ये सरकारी अमलाक भी तोड़ेगा, ये रियासत के ऊपर हमला आवर भी होगा, ये पुलिस वालों के सर भी तोड़ेगा, ये जत्थे भी लेकर आएगा, ये गुंडे भी लेकर आएगा, ये असला भी लेकर आएगा। और कल क्या हुआ? अवाम ने वो सब कुछ देखा जो हुकूमत कह रही थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही थी कि ये एक डरपोक फॉरेन एजेंट चूहा है जो अदालत के सामने पेश नहीं होना चाहता। और अदालत को बार बार कह रहे थे कि ये रियासती रिट के ऊपर हमला आवर होगा, ये अदालत को धमकी से, असले से, गुंडागर्दी से, दहशतगर्दी से, बदमाशी से डरा रहा है। और कल क्या हुआ? कल बिल्कुल वही हुआ जो हम कह रहे थे। एक चूहा अदालत गया और लाहौर से लेकर, जमान पाक से लेकर इस्लामाबाद तक, ट्रायल कोर्ट तक असले से लेस, जत्थों से लेस, गुंडों से लेस, डंडों से लेस, हथियारों से लेस, पत्थरों से लेस एक शख्स रियासत पे हमला करते 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 इस्लामाबाद पहुंचा और वो पेश नहीं हुआ क्योंकि वो चोर है, क्योंकि वो फॉरेन एजेंट है, क्योंकि वो टेहरियन का वालिद है, क्योंकि उसने घड़ियां चुराई हैं, क्योंकि उसने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है, इसलिए वो पेश नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको इससे पहले कि मैं आपको मजीद एविडेंस दूं, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूं कि कल अदालती अहकामात के ऊपर अमल दरामद करने की पुलिस ने 2 दिन से जमान पाक में और कल जो कोशिश की, एक दहशतगर्द ने जो प्लान किया, जो कंसीव किया, उसको एग्जीक्यूट किया। और वो आप वीडियो देखें, फिर मैं आपसे इससे आगे मौजू पे बात करती हूं। ये पुलिस की गाड़ियों के ऊपर
लोगों की मोटर बाइक्स के ऊपर, गरीबों की मोटर बाइक्स के ऊपर, पुलिस की गाड़ियों के ऊपर ये हमला कल, इससे पहले जो जमान पार्क में हुआ है वो आप लोग देख चुके हैं। ये माशरे की हिफाजती जमानत पुलिस है जिसके ऊपर एक दहशतगर्द हमला आवर है। और आपने एक देखा होगा कि पुलिस की गाड़ी जो है वो किस तरह तोड़ के उस पर हमला करके उसको वो डूब रही है। ये वही हिफाजती जमानत जो माशरे की पुलिस है, वो इस दहशतगर्द की वजह से, इस रियासती हमला आवर की वजह से, जो अपने दहशतगर्द गिरोह के जरिए, गुंडों के जरिए, असले के जरिए, गुलेलों के जरिए, पत्थरों के जरिए आज उस जमानती माशरे की जमानत जो हिफाजत की जमानत होती है उस पर हमला आवर है। ये सियासी तंजीम है, ये सियासी जमात है। ये जो मनाजर आपने देखे हैं, और ये मनाजर क्यों है? पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस अदालत के अहकामात, उनके अरेस्ट वारंट्स के ऊपर अहकामात पर अमल करवा रही थी। अब बात सिर्फ इतनी है कि वो कोर्ट्स जहां चिड़ी पर नहीं मारती थी, वो कोर्ट्स जहां माय लॉर्ड कहा जाता था, वो कोर्ट्स जिसमें अगर 1 मिनट की ताखीर होती थी तो बेल कैंसिल हो जाती थी, वो कोर्ट्स जहां 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ सिसिलियन माफिया, गॉड फादर और डॉन के आवाजें आती थी, जो वो वजीर आजम जो कानून के आगे पेश हो रहा था ये जानते हुए कि ये झूठे केसेस हैं। और आज क्या हो रहा है कोर्ट्स में? आज कोर्ट्स में पत्थर बरसाए जा रहे हैं, डंडे, असला, गुंडे, दहशतगर्द, पेट्रोल बम्स वो बरसाए जा रहे हैं। और उसके बरक्स क्या हो रहा है कि गाड़ी में रजिस्ट्रार को भेजकर अटेंडेंस लगाने के लिए अदालत दरखास्त कर रही है। तो मुझे ये बताएं कि कौन सी पुलिस, अदालत की मुहाफिज भी पुलिस होती है, इंसाफ की मुहाफिज अदालत होती है। तो जो पुलिस अदालत की हिफाजत करती है उसकी रिट को अगर अदालतें कॉम्प्रोमाइज करेंगी तो फिर इस मुल्क में सिर्फ खाना जंगी होगी। इस मुल्क की हर गली का अपना कानून होगा। इस मुल्क के हर गली से जत्थे निकलेंगे, हर गली से जत्थे गुंडे, दहशतगर्द निकलकर अदालतों के ऊपर हमला आवर होंगे, पुलिस के ऊपर हमला आवर होंगे, रियासत के ऊपर हमला आवर होंगे। ये चीज यहां रुकेगी नहीं। अगर आप लोगों का यह ख्याल है कि एक लाडले को यह तहफ्फुज देकर, एक लाडले को यह रियायत देकर इस मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी तो यह आपकी गलत फहमी है। अगर यह रवायत चल पड़ी जो चल पड़ी है कल, एक शख्स को आप 23 अगस्त से बुला रहे हैं, वो कहता है मैं नहीं आऊंगा, मुझे बुलाओगे तो मैं कहूंगा ओ जेबा जज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अगर पुलिस को कहा जाए कि अदालत कहे कि उस दहशतगर्द को पकड़कर, उस मुजरिम को, उस मुलजिम को सामने पेश किया जाए, तो वो गुंडे लेकर, गुलेले लेकर, पत्थर लेकर, असला लेकर, दहशतगर्द लेकर अदालतों के ऊपर इस तरह हमला आवर हो और दरखास्त की जाए कि गाड़ी में अटेंडेंस लगा ली जाए। ये मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। तो फिर वो लोग जो कल अदालत को ये कहेंगे कि हम पेश नहीं होंगे, हर गली से जत्थे निकलेंगे, गुंडे निकलेंगे जो कानून, आईन और इंसाफ के ऊपर इसी तरह हमला आवर होंगे। और उसके बाद इंसाफ की, कानून की और अदलिया की पुरइसरार खामोशी मुल्क के लिए खतरा बनती जा रही है। एक शख्स जो सुबह उठता है और अदारों पे हमला आवर होता है, पुलिस पर हमला आवर होता है, इमरान खान मुल्क की इस तबाही का, मुल्क की इस में आग लगने का, मुल्क को तकसीम करने का, जीबी की फोर्स को पंजाब से लड़ाने का, पंजाब की फोर्स को वफाक से लड़ाने का, ये वो शख्स है जो मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने की बात करता था, आज मुल्क को टुकड़े टुकड़े कर रहा है। आज पाकिस्तान में आईन को, कानून को, रियासत की रिट को टुकड़े टुकड़े कर रहा है और अदालतों से रिलीफ का बंडल पैकेज लेकर जा रहा है।
मुझे ये बताएं कि किस मुजरिम को, किस दहशतगर्द को, किस गुंडे को, किस मुल्जिम को आज तक ये रियायत मिली है कि वो लाहौर से चले दहशतगर्द लेकर, गुंडे लेकर, गुलेले पत्थर लेकर और पहुंचे अदालत। ना अदालत की कोई खिड़की बचे, ना अदालत का कोई दरवाजा बचे, ना अदालत का कोई कैमरा बचे, ना अदालत का कोई सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बचे। रास्ते में लोगों के मोटर बाइक जलाए, पुलिस वालों की वैन्स के ऊपर हमला करे, पुलिस वालों के सर तोड़े, रियासत की रिट के सर तोड़े, और उसको ये रियायत दी जाए कि तुम गाड़ी में बैठो, तुम्हारी अटेंडेंस लगवाई जाएगी, और ये कहा जाए कि इमरान खान को आने नहीं दिया जा रहा। पुलिस तो उसको लेने गई थी, आपने उसको रिलीफ देकर पुलिस की उस